मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। Today we are going to talk about acting. What is acting basically in movies? It's defining a character at a particular time. It is showing what the character is feeling at that instance and making us feel or understand what the character is feeling. Acting is every action the artist performs on the screen, not just the facial expression, it's also the body language. We all have seen a lot of things in our lives, and we have seen how people react to it. And we derive things from that to understand what's going on with the character on screen. And that's what the great actors take advantage of. Instead of showing us directly what they feel, they let us understand what they feel using their body language. For example, while showing sadness, not for all cases, but instead of crying out loud, they might act like character is controlling his emotions, or like the character doesn't want people to know that he is sad. I'm sorry, Mr. Whitaker, I couldn't hear you. What did you say? I said, God help me. Yes, well, however, is it your opinion? It's my opinion. Trina did not drink that vodka. Excuse me, Mr. Whitaker? She saved the boy's life. That's... Could you speak louder, Captain Trina Whitaker? Marquez did not drink the vodka. Because I drank the vodka. Now, the power of not expressing yourself completely on screen is that people start to question the state of mind of the character. They ask themselves if they really understand this particular character and ask themselves what the character is feeling. This starts a connection between them and all the characters. And so it also holds a big hand in making a character likable. Acting is the way a character moves towards other characters or a thing. It is eye movements they make. It's also at what instance they are going to blink. It says more about a character than you consciously know. It's also the way a person breathes, whether it is a scary atmosphere or you saw his crush. Everything builds the character in your mind. If you roughly consider, there are two types of actors. Actors who play themselves in every movie, that is, who are also given with the same roles, and method actors who completely transform into a character. Usually in our country, when they want to cast an actor, the producers and the directors are going to see the previous movies of the actor. And if their acting suits their current script, then they select them. So it's not like they have to prepare for a character, they just have to do what they usually do. So it's always Salman playing Salman and Varun Dhawan playing Varun Dhawan, just like many other actors. The other types of actors are method actors. They physically suit the role, so they are chosen. And acting, well, it's left to the character how the character has to be played. They put a lot of time to understand the role of the character in this movie and the connection of the characters with the other characters of the movie. होटल है, वहाँ चले गया था मैं 3 दिन के लिए फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले। और डायलॉग सब मैंने याद कर ही लिए थे। अब मैं सोच रहा था कि बार बार रिपीट कर रहा था। तो एक वक्त ऐसा आया शाम के टाइम में जब बैठा हुआ इसको रिसाइट कर रहा था डायलॉग्स को, तो एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे खुद से ही मतलब वो लगने लगा। मैं बार बार कन्विंस करता रहा अपने आप को 3 दिन तक वहाँ पे कि मैं मार सकता हूँ इजीली किसी को। ये बार बार 3 दिन तक हर वक्त हर सेकंड में कन्विंस करता रहा अपने आप को मैं इजीली मार सकता हूँ किसी को। तो एक वक्त ऐसा आया था कि अगर मैं यही सोच के ना बाहर निकला और मैं लोगों की तरफ देखता जा रहा था, बहुत सारे लोग थे जो गांव के लोग थे, वो जो जानते भी नहीं थे मुझे, वो लोग चल रहे हैं ऐसे और मैं उनकी तरफ से जा रहा हूँ, जिसकी तरफ एक बार मैंने देख लिया ना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता था वो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने आप पे रियल लाइफ में उस वक्त पे। And surely there is a huge part of voice acting also involved in the process, which most of them neglect, and they just go with the most basic methods. There's something I've been meaning to tell you, bud. Well, it's likely November before I can come out here again.
Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? I grew up in a household of girls, so there were very few Batman comic books lying around. They were mainly like Archie. So that's probably the only reason why I never grew up reading Batman. So during this transformation, they take a lot of mental stress too, and also they give a lot of room for improvisation. Some of the best method actors like Balraj Sahni actually started driving rickshaw for 2 weeks so that he could understand their mindset and also their language, and that gave us one of the best performances by him in Bimal Roy's Do Biga Zameen. You need to really understand how a person's mind gets affected by the way you act, and it's not easy at all. And that's why when the best trained actors can't play some of the roles played by few other actors. Acting is just not moving your face muscles. It's a very intellectual art only few people manage to learn. At the end, it comes to how you understand the character, and the main thing is how you improvise it. और आज हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ एक्टर्स चाहे जितना भी मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम सब कुछ चेंज कर ले, फिर भी हर फिल्म में, हर रोल में वो एक जैसे ही लगते हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो हर फिल्म में एक नए ही किरदार में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इतना कि आप उनकी असलियत ही भूल जाते हैं। ये जादू कैसे होता है, क्या आप जानना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले यू रिमेंबर यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस, एंड वीडियो को लाइक करते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सो कैरेक्टराइजेशन जो है वो एक्टिंग का एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसे समझना बहुत आसान नहीं है, टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट को बहुत इजीली प्रेजेंट करें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 वर्ड्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनर एंड आउटर। अब ये क्या होते हैं? चलिए आउटर से शुरुआत करते हैं। गाइस, आउटर का मतलब है एक कैरेक्टर का आउटर सेल्फ, यानी कि वो कैरेक्टर कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे हैं, वो अपने आप को कैरी कैसे करता है, कैसे कपड़े पहनता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और वो बात कैसे करता है। सो आउटर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेकअप एंड हेयर, विच आर नोन एज द एक्सटर्नल एड्स फॉर एन एक्टर। दीपिका पादुकोण मस्तानी भी बनी और छपाक की मालती भी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाला साहब ठाकरे भी बने, और साथ ही मॉम फिल्म में उन्होंने एक अलग ही टाइप के डिटेक्टिव का रोल प्ले किया। परेश रावल संजू फिल्म में सुनील दत्त साहब के रोल में नजर आए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हेरा फेरी में बाबूराव आप्टे का रोल प्ले किया। प्रियंका चोपड़ा मेरी कॉम भी थी और साथ ही बर्फी की झिलमिल भी। यस फ्रेंड्स, इन सब रोल्स और कैरेक्टर्स में मेकअप, हेयर, प्रोस्थेटिक्स का काफी कमाल था, लेकिन क्या आपको लगता है दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज इनफ? जी नहीं। हर कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, हर चीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट किया गया था, which also contributes to the outer self of a character। अब डिटेल में अगर आपको ये समझना है तो चलिए सोम के पास चलते हैं कोलकाता, जो एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक कैरेक्टर का आउटर साइड कैसे अच्छे से क्रिएट किया जाए वो समझाएंगे। ओवर टू यू सोम। हे हाय गरिमा, थैंक यू। सो आज हम कैरेक्टराइजेशन पे बातचीत कर रहे हैं, और कैरेक्टराइजेशन लेके हमारे मन में तो बहुत कुछ है कि कैरेक्टराइजेशन कैसे करे, कैसे समझे। तो मैं जब एनएसडी में था, जब पहली बार एनएसडी में गया, तो मुझे भी बहुत ऐसे मैं भी कंफ्यूज था कि कैसे करूं। अब 3 साल में 8 प्रोडक्शन करना होता है, थिएटर प्रोडक्शन, तो उसमें 8 अलग अलग किरदार। अब वो किरदार कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, तो कई सारे सवाल आते हैं। तो ऐसे ही कुछ किरदार मैंने निभाया और उसके ऊपर मैंने कैसे काम किया। तो एक कैरेक्टर ये है जो मेरे लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि इसका नाम था स्टोन, और ये यूएसए से बिलोंग करता था स्टोरी के हिसाब से। तो बोलना तो हमें हिंदी में ही था, क्योंकि हिंदी नाटक है इसके साथ कर रहे थे, लेकिन दिखने में कैसा हो सकता है, तो इसलिए मैं अपना डाइट कम कर दिया और मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। सोचा कि थोड़ा एब्स बनाया जाए, फिर खुद ही टैटू बनाता था, क्योंकि इसका नेचर ही वैसा था। मुझे लगा कि ये शर्ट वर्ट उतारता होगा और उस तरीके के लोग जो नशा करते हैं, लुक बदल दिया मैंने। मुझे लगा क्या लगा तुम्हें ये सब आसान होगा? उसने क्या है ये सब?
उसने किया ना ये सब। तो उससे जो कैरेक्टर का जो बाहरी हिस्सा है, जैसे आप कैरेक्टर का अप्रोच देखते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा है, वो बिल्कुल बदल गया। और ये कैरेक्टर करने के बाद ही तुरंत मुझे एक डॉक्टर करना होता था उसी नाटक में। तो मैं ये बाल छुपाने के लिए कैप पहन लेता था और उसके बाद अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता था। तो ऊपर से बिल्कुल ये दो कैरेक्टर बिल्कुल अलग दिखता था। और ये नाटक करने के बस मतलब 30-40 दिन बाद एक नया प्रोडक्शन हमने किया, नाले वाली लड़की। उस नाटक में मुझे एक पुलिस वाले का किरदार करना था, और जो कि हरियाणा और दिल्ली के जो बॉर्डर है, मतलब गुड़गांव उस तरफ के आसपास के, वहां से है। हरियाणवी में लोग मैडम जी हमारा काम है मैडम जी, तो बहुत चौड़ में बात करते हैं एकदम। तो बात करने का तरीका बिल्कुल बदल लिया। हमारा काम है मैडम जी, हर बात पे हर पहलू से वाकिफ पूरी की पूरी इंक्वायरी। और लुक में क्या हुआ, मैंने जो मेरा बाल ऐसे ब्लीच किया हुआ था उसको ट्रिम कर दिया, हटा दिया बाल। फिर पुलिस वाला क्या होता है, मूंछ बना लेता है, तो मूंछ रख लिया। अब टाइटल हमने रखा था पांडे जी, तो सोचा कि चलो ब्राह्मण है, एक जनेऊ उसके साथ लगा लिए, एक माला पहन लिया कि चलो स्टाइल के लिए पहनता है। तो उसका जो गेटअप है बाहर से वो बदल गया। अब ये कैरेक्टर है एक असुर का, नरकासुर, जो फोक इनपुट असमीज फोक एक फॉर्म है, और ये बिल्कुल गेटअप बदला हुआ था। ये देखो इसका गेटअप बिल्कुल बदला हुआ है, ये मूंछ वूछ लगा के, और उसका देखने का तरीका, गुस्सा। और इसकी एक अलग चीज ये है कि ये डांस करता है, ऐसे ऐसे करते हैं बिल्कुल। तो मतलब एनर्जेटिक बहुत ज्यादा। तो राक्षस जो है वो एनर्जेटिक है एकदम, और आवाज, और इसमें आसामीज भी मैंने बोला। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, सभी ऑब्जर्वेशन है। असुर हमारे नजर में कुछ है, असुर से तो हम कभी मिले नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा है, सीरीज में देखा है, या कहानी भी सुना है। तो आपके नजर में असुर क्या है वो आपके नजर में है। तो वहां से मैंने अपने इमेजिनेशन के थ्रू बनाया, इसलिए मैं कहता हूं इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। बाकी बॉडी लैंग्वेज, इस पे हमने एक एपिसोड पहले ही बनाया है, गरिमा प्लीज अटैच कर दे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो मैंने जो असुर का बॉडी लैंग्वेज था वो कुछ और था पकड़ा, फिर वो जो यूएसए का गाय वो नशा करता है उसका कुछ बॉडी लैंग्वेज पकड़ा। तो और पुलिस वाला जो है वो तो इनको चौड़ में रहता है, उसका बात करने का तरीका ही अलग है बिल्कुल, तो उसका भी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगा। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है इस चीज में। और अपना ऑब्जर्वेशन, क्या आप हर कैरेक्टर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको कोई भी कैरेक्टर करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसलिए आपके पास आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आपको जो भी किरदार दिखे, वो चाहे आपके फैमिली में कोई भी हो, हर एक इंसान अलग अलग होता है। दुनिया में हर एक इंसान आपके लिए एक कैरेक्टर है। आपके पास जितना ऑब्जर्वेशन, आप जितना ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, आप उतने ही अच्छे से एक कैरेक्टर को निभा भी पाएंगे। तो इसलिए नोट बनाएं अपने पास कि अगर एक बंदा, आपने किसी को एक देखा और आपको थोड़ा यूनिक लगा, या कोई एक प्रोफेशन का है, डॉक्टर है, वकील है, पुलिस वाला है, कोई जो बीएसएफ जवान है, तो उनका अलग अलग अपना बॉडी पोस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, बात करने का तरीका होता है, कॉस्ट्यूम होता है। तो इन सब चीजों के बारे में एक एक किरदार जो भी आपको मिले उसके बारे में आप एक नोट बनाएं अपने पास कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ऐसा चलता है, ऐसे बात करता है, ऐसे कपड़े पहनता है। तो उसको अपने पास रखें ताकि वो आपके साथ रह जाए। आपका जो ये मेमोरी बैंक है दिमाग में, वो आपके पास रह जाए। और अब बात करते हैं एक कैरेक्टर के इनर सेल्फ की। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर प्ले करना है तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि वो कैरेक्टर सोचता कैसे है, उसके जो एक्शंस हैं वो जस्टिफाई कैसे होंगे, और वो कैसे पॉसिबल है। आपको हर कैरेक्टर की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, बचपन से लेकर जिस एज तक का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसकी जर्नी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बार एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर चुके हैं, करेक्ट। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर में फैजल खान प्ले किया, वहीं दूसरी तरफ सेक्रेड गेम्स में वो गाय टोंडे थे। लेकिन क्या ये दोनों कैरेक्टर्स आपको सेम लगते हैं? नहीं। द रीजन इज इन दोनों ही कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, उनका बचपन से लेकर जो उन मूवीज में या वेब सीरीज में दिखाया गया है, वो सब स्टोरी एकदम अलग है। एंड दैट इज वाई बोथ द कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट। तो एक कैरेक्टर के बारे में हम जाने कैसे? वेल,
कई बार तो ये काम आपको डायरेक्टर या फिर स्क्रिप्ट राइटर होते हैं वो इनमें हेल्प कर देते हैं, वो आपको कैरेक्टर का बैकग्राउंड बता देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं उस कैरेक्टर के बारे में, विच रियली हेल्प्स यू। बट अगर ऐसा नहीं होता है या फिर वो डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल्ड नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? You have to do a background story of your character, which means कि बचपन से लेकर उस स्टेज तक की आपको उस कैरेक्टर की एक स्टोरी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे आप उसकी मानसिकता और उसके एक्शंस के बारे में ज्यादा जान सकें। तो एक कैरेक्टर को कैसे जीवित किया जाता है, पर्दे पर उसे कैसे उतारा जाता है, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस होती हैं, ये सब आपको सोम समझाएंगे। अगर मैं एक किरदार हूं, मैं आपके लिए किरदार हूं, कल को मेरा किरदार आपको निभाना है, तो मेरे 28 साल का जो जिंदगी है, मैं 28 साल का हूं, उसके 28 साल के बारे में आपको जानना है। अगर आप देखें कि सुशांत ने धोनी का जो किरदार किया है, में प्रियंका चोपड़ा ने जो मैरी कॉम का किरदार किया है, तो वो सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं और उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में वो जान चुके हैं। वो आप देखें कि कितना परफेक्शन आता है, तभी आपको लगता है कि हाँ ये एक्टर वही कैरेक्टर है। जैसे मुझे अगर कल को कहा जाए गरिमा के किरदार करने के लिए, तो मुझे गरिमा के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा कि उसने क्या किया बचपन से, वो कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप आया उसकी जिंदगी में, उसे क्या खाना पसंद है, वो क्या क्या खाना बनाना पसंद करती है, या कौन सी जगह पे वो घूमना पसंद करती है, वो फिल्म देखना पसंद करती है, किस टाइप की फिल्म देखना पसंद करती है, वो ड्राइव करना पसंद करती है या स्कूटी के पीछे बैठना पसंद करती है, हर चीज, क्या पहनना, खाना, टेस्ट, देखना, बोलना, एक्टिविस्ट है, फेमिनिस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे आप एक इंसान है, आप दूसरे इंसान को जैसे जन्म दे रहे हैं, अपने अंदर किरदार बना रहे हैं, तो आपको उसके बारे में हर डिटेल जानने की जरूरत है। तो इन चीजों को समझने के लिए कैसे बैकग्राउंड बनाएं, एक्सरसाइज है, टास्क आपके लिए आपको ये करना है। क्योंकि जब मैं एनएसडी में था 3rd ईयर में, तो मनोज वाजपेयी जी वहां पे आए थे और उन्होंने ये बताया था कि ऐसे आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्टर के लिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एक न्यूज़पेपर ले लें आप कोई भी रीजन से हैं, डजंट मैटर, पुराना नया न्यूज़पेपर आप ले लो, उसमें से एक न्यूज पढ़ो और उस न्यूज में से ना एक छोटा सा किरदार निकालो जिसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, मतलब मोटा मोटा लिखा हुआ है कि वो बिहार का रहने वाला था, वो मैथिली भाषा में बात करता है, वो चाय की टपरी के बाजू में बैठा था, उसने कहा मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा, इतना ही लिखा हुआ है। उस किरदार के बारे में लिखो, वो कैसे दिखता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कपड़ा पहनने का ढंग क्या है, वो क्या काम करता है, पूरा लिखो अपने इमेजिनेशन से, है ना। तो हमने जो पिछले सारे एपिसोड बनाए हैं कि जो आपको हेल्प कर सकता है वॉइस के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उन एपिसोड को फिर से देखो आप, और उसमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और फिर ये काम जरूर आप घर पे करें, ताकि आप एक कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं अपने इमेजिनेशन से, उसको बहुत अच्छे से समझ पाए और एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बना भी पाए। अरे सोम, ये देखो तुम्हारे घर में ये चोर क्या कर रहा है? ओ तेरी, मुझे तो मतलब ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मेरे घर पे जो काम करता है वो मास्क पहन के ऐसे चुरा सकता है मेरा परफ्यूम जो है। यार ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन चलो इस बार तो मैंने पकड़ लिया, आगे से ध्यान रखूंगा। तो आपके लिए भी यही है कि जैसे मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया सोच के, वैसे ही आपको और कई तरह के अलग अलग चोरी होते हैं। सच में मत कीजिएगा चोरी, ठीक है। अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं आप कि आप कुछ चुरा रहे हैं एक कैरेक्टर बन के। हो सकता है आप घर का जो काम वाला है, या फिर हो सकता है हम अपने घर में चोरी चोरी बिस्किट भी खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। पापा के पॉकेट से पैसे तो सभी ने चुराए, लड़का हो लड़की हो, बचपन में सभी ने पैसे चुराए। तो ऐसे कुछ चोरी करना, तो चोरी करने में क्या होता है, जैसे इसके बीच मैंने किया कि एक बार उसने लिया तो मतलब ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, झप से रख दिया, फिर फटाफट उसने लगाया और फिर उसको अच्छा लगा, बाद में सूंघा, लेकिन बीच बीच में वो ख्याल रखता है। तो वो जो चोरी करते वक्त
हम बहुत अटेंशन जो होता है अटेंशन मूड में होते हैं। तो इसलिए एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आपको यहां पे 5W1H इस्तेमाल करना है कि कौन चोरी कर रहा है, कैसे चोरी कर रहा है, कहां चोरी कर रहा है, कब चोरी कर रहा है, क्यों चोरी कर रहा है। तो ये सब आप एक सिचुएशन में ढूंढ सकते हैं, जो मैंने अभी इंप्रोवाइज किया उसमें आप ढूंढ सकते हैं। तो ये सारा सोच के आप एक कहानी सोचें और सोचने के बाद अपने हिसाब से एक सिचुएशन अपने घर पे रिकॉर्ड करें और फिर उसको देखें। फ्रेंड्स, एक्टिंग में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप खोदोगे, जितनी गहराई में जाओगे, उतना ही आप चीज़ों को बाहर निकाल पाओगे। ये मैंने नहीं, ये बातें मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाई हैं और ये बातें एकदम करेक्ट हैं। अब एक्टिंग करते हुए अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दूं, ठीक है, तो क्या होता है ना, सबसे पहली चीज़, सबसे ऑब्वियस बात हमारे दिमाग में आती है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन। अगर मैंने आपको पेन दिया और उसे यूज़ करने के लिए कहा, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या सोचोगे? लिखना। बट एज एन एक्टर यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। लिखना इज़ दी ऑब्वियस। जो चीज़ें ऑब्वियस नहीं है वो हमें ढूंढनी है, और वो कैसे करना है वो सोम बताएंगे। अगर मैं 3 सिचुएशन आपको बताऊं कि एक मास्टर जी के पास ये पेन है, तो मास्टर जी के पॉकेट में पेन हो सकता है, या फिर वो पेन लेके समझाएंगे, देखो मैं तुमसे जो जो कह रहा हूं वो बात ये है कि तुम्हें घर से पढ़ के आना है। अब एक स्टूडेंट के ऊपर ये पेन का अप्लाई कैसे हो सकता है? स्टूडेंट, हम हाथ पे ऐसे सुन रहे हैं और कर रहे हैं, ये पेन से कुछ कुछ कर रहे हैं बैठ के, या फिर मास्टर जी ने ये देख लिया, गुस्सा हो गया, ये पेन को डाल के बोल सर मैं मैथ्स करके आऊंगा सर, प्लीज प्लीज प्लीज, लग रहा है सर प्लीज लग रहा है सर, लग रहा है। ये भी होता है। अब होता है कि जो कारपेंटर्स होते हैं उनके पास ज्यादातर पेंसिल होता है या पेन भी होता है, तो वो अपने कान पे ऐसे पेंसिल या पेन को रखते हैं। तो अगर आप एक कारपेंटर हैं और आप एक किरदार कर रहे हैं कारपेंटर का, तो आपके कान में ये पेंसिल या पेन होगा, तो वो किरदार बहुत ही रियल हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कुछ यहाँ पे नहीं है। हाँ देखो, यहां से ना ये जो 6 फीट का दरवाजा है उसको ना तुम एक काम करो, उसको 2 इंच कम कर दो, है ना, ताकि ऊपर जो हम ट्यूबलाइट लगाएंगे ना वो सीधा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बात करते हैं, उनके पास होता है। तो इस पेन का इस्तेमाल कैसे कैसे है, अब मैं ये गरिमा को ट्रांसफर करता हूं पेन, पता नहीं ये पेन मुंबई जाते जाते बदल जाएगा कि नहीं, बट गरिमा प्लीज आप भी कुछ करके दिखाओ। सब कुछ तो तुमने ही करके दिखा दिया सोम, अब तो मैं इस पेन से सिर्फ लिख ही सकती हूँ। गाइस, थोड़ा और सोचिए, इस पेन से एक लड़की अपने बालों से जूड़ा बांध सकती है, या फिर जब आप नर्वस हैं तो आप अपने पेन को च्यू कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हैं। सो पेन के साथ तो क्या करना है ये हमने आपको बता दिया। अब आप यही एक्टिविटी किसी पिलो को लेकर या फिर हैंकरचीफ को लेकर, किसी कुर्सी को लेकर, बहुत सारे घर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए और उसके इर्द गिर्द कम से कम 5 सिचुएशंस इमेजिन कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन से उसे इनैक्ट कीजिए। वेल, ये तो हो गई बात अलग अलग सिचुएशंस, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन की। लेकिन जब भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अपने इनर इमोशंस को कैसे सही तरीके से बाहर लाया जाए, उसके लिए क्या करना है वो सोम से जानते हैं। हम जब भी एक्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो इमोशन है ना वो खुल के नहीं आता। कभी रोते हैं, हंसते हैं, हा 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 हा, ये रोते हैं, तुमने मेरे साथ ये कैसे किया, गुस्सा होते हैं और निकल जाओ यहां से, बिल्कुल ऊपर ऊपर बात करते हैं, कहीं सांस में अंतर ही नहीं आता। यार गुस्सा होते तो सांस में अंतर आता है, हंसते हैं तो पेट में ऐसे बिल्कुल ऐसे क्रैम्प आ जाता है पेट में, इसीलिए कहते हैं हंसते हंसते पेट दर्द होता है। या गुस्सा होते तो कहते हैं गुस्सा मत कर, ठंडा हो जाए, यार दिमाग पे खून सवार है, फिर क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो सांस में अंतर आता है, तो वो जरूरी है। अब हमारे साथ एक मुश्किल ये होता है कि हम मोनोलॉग ढूंढ नहीं पाते कि किस तरह का मोनोलॉग करें, कैसे करें। तो इसीलिए आप सोचो कि आपको अभी गुस्सा करना है, किसी चीज पे गुस्सा करना है, कि मेरा ये मोबाइल है और मैं मोबाइल को डांट रहा हूं कि इसमें इंटरनेट अच्छे से नहीं चलता, ठीक है। आपको जिब्रिश में बात करना है। जिब्रिश इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज जो सब कुछ मिक्स है, क्या है पता नहीं, लेकिन आपका इमोशन आपको खोलने के लिए, अगर मैं मोबाइल को डांट रहा हूं, तो
जितनी देर तक आप करेंगे, अब तो मैंने शुरू से किया झप से, तो उतना गुस्सा फील कर पाएंगे, गुस्सा कर रहे या फिर हंस रहे आप कोई भी एक सिचुएशन में, किसी के ऊपर हंस रहे, आप ऐसे ही बात कर रहे, रैंडमली जो दिमाग में आए उसको स्पॉन्टेनियसली बोलते रहे तो यासी लाइक शुरू में जैसे ही आप शुरू करेंगे एक तरह का मैकेनिज्म होगा कि नहीं आ रहा यार हंस रहे, लेकिन जितनी देर तक आप करेंगे धीरे धीरे आपके सांस में अंतर आता जाएगा, और जैसे ही आता जाएगा आपको डायलॉग की तो कोई फिक्र है नहीं, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी आ रहा है लैंग्वेज पे वो बोलते जाए। ताजमहल तो इसीलिए ये जो जिब्रिश एक्सरसाइज है उसको करें, अलग अलग इमोशन में करें। जो नवरस की बात हमने की थी इसके पहले, आप अलग अलग इमोशन में सोचे, कोई भी एक सिचुएशन सोचे। जैसे हम चोर वाला सिचुएशन बना रहे थे, तो कुछ भी आपने सोच लिया कि अभी मुझे गुस्सा करना है, अभी मेरे मोबाइल पे गुस्सा करना है और मुझे बोलना है। आप सोच लो और गुस्सा करो, बोलो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक करते रहो, रोज करते रहो, कंटिन्यूअसली करो, ताकि आपका जो इमोशन है अंदर से वो खुले, आपके बॉडी में क्या रिएक्शन होता है गुस्सा करने में, हंसने में, वो आपको समझ आए, आप अंदर से फील कर पाए। तो इमोशंस को कैसे चैनलाइज करना है ये आप लोग समझ गए हो, लेकिन आपकी बॉडी को भी तो साथ साथ रिएक्ट करना है। सो बॉडी लैंग्वेज को कैसे इवॉल्व किया जाए, उसके लिए आपको सोम की तरह एक रोबोट बनना पड़ेगा। अब ये है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन के बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझे। तो बॉडी का रिदम होता है, अलग अलग बॉडी रिदम होता है। तो बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए ये एक्सरसाइज, जो मूवमेंट हम करते हैं, मूवमेंट होता है कि इंपल्सिव, जो आपके मन में तभी आ रहा है। तो एक चीज का बॉडी लैंग्वेज हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी भी इंसान के भी बॉडी लैंग्वेज समझ सके। तो इसके लिए आप ये जो रोबोटिक वाला एक्सरसाइज है, कि रोबोट जैसे, रोबोट का क्या होता है, रोबोट की आंखें जो है वो देखिए, आंखें देखिए, बिल्कुल ऐसे ब्लिंक नहीं होता, इंसान की तरह ऐसे ऐसे नहीं होता, उसका सर जहां जा रहा है आंखें वहीं पे जा रहा है, ऐसे चल रहा है उसके साथ। और उसका जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी क्या होता है, उंगली कितना हिलता होगा, कहां से हिलता होगा, या फिर ये जो जॉइंट्स है वो हिलता होगा कि नहीं, वो आम इंसान की तरह नहीं होता। जैसे हम आम इंसान हैं तो हम जैसे बॉडी रिएक्ट करते हैं, तो रोबोटिक बॉडी लैंग्वेज वैसे नहीं होता। तो ये भी आप घर पे अपने खुद से रिकॉर्ड करें और उसको देखें। एक रोबोटिक कोई भी एक वीडियो ले ले रोबोट का, और उस रोबोट को देखें और उसके तरीके से अपने बॉडी में उस रोबोट का जो नेचर है उसको ढूंढने की कोशिश करें। और धीरे धीरे आप उसको इतना बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी डेवलप होता जाएगा। और आप किसी भी चीज, कोई भी इंसान, एनिमल, ऑब्जेक्ट, उसका जो नेचर है, जो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको आप उतने बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिसिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस। यार किसी भी सिचुएशन में अगर आपके इमोशंस आपकी आंखों तक नहीं पहुंचे ना, तो मजा नहीं आता। इसके लिए क्या एक्सरसाइज है, ये सोम से जानिए। अब हम एक्सप्रेशन के ऊपर बात करते हैं कि एक्सप्रेशन आपके आंखों से दिखना चाहिए। जैसे आप बिलीव करेंगे अपने अंदर कि वो सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, जिसके लिए हमेशा 5W1H का सहारा मैंने बहुत बार कहा 5W1H के बारे में, कि सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल उठाए। तो एक्सप्रेशन का हम प्रैक्टिस करते हैं कि एक्सप्रेशन में हम एक ही सिचुएशन को 3 तरीके से करके देखते हैं। मतलब आप मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और एक मक्खी है वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। तो बिल्कुल रियल है ये कि एक सिचुएशन आप घर पे पढ़ रहे हैं, अरे तो एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि चल रहा है। अब मान लो कि ये बहुत ज्यादा कॉमेडी, अगर इसको हमें कॉमेडी एक सिचुएशन क्रिएट करना है तो कैसे करें।
सिर्फ आंखों से ही करना है। अब वो नाक के ऊपर आके बैठा, अब आप उसको मारने वाले हो किताब से। अब तो नाक पे लग गया ना आपका, चक्कर आ गया नाक पे लगने से, तो कैसे क्रिएट होगा? मैंने एक कॉमेडी का टच बताया। अब मान लो एक सिचुएशन ऐसा भी है, जो मक्खी है वो बहुत डरावना मक्खी है, वो आपके नाक से अंदर जाके ब्रेन तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए आपको, आपके आंखों में वो डर है, आप हिल भी नहीं सकते। आप हिलोगे कुछ भी मूवमेंट होगा, सांस बिल्कुल बहुत धीरे सांस लेना है। सांस अगर पता चल गया मक्खी को कि आप सांस ले रहे हैं, आप इंसान है, वहां से सक अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए वो सिचुएशन में आपके आंखों में डर कैसे होगा? ओके, तो आपके पास 3 सिचुएशन है। एक मैंने करके बताया कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन बिल्कुल मक्खी है, लेकिन ये सारा इमेजिनेशन में भी आता है कि आपको इमेजिन करना है और उसको बिलीव करना है। आप जितने अच्छे से इमेजिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बिलीव करेंगे, उतने अच्छे से आप बारीकी से कर सकते हैं। वाओ गाइज, ये 7 हफ्ते कैसे निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला, राइट? यू नो, सोम और मैंने बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद हर एक एपिसोड बनाया, हर एक वीडियो बनाया। मुझे भी इन 7 हफ्तों में बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अभी आखिरी एपिसोड है और बिल्कुल समय समाप्ति की घोषणा, तो हम आखिर में पहुंच गए। और जैसा कि मैंने एकदम शुरू में इंट्रो एपिसोड में कहा था कि आपके पास कोई काला जादू, कोई मैजिक या गिली गिली होश नहीं है, जो आप रात को सो रहे हैं, सुबह उठ के देख रहे हैं, अरे वाह कमाल का एक्टर हो गया, और लोग कह रहे हैं वाह 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 क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। और जिनको देख के आप सोचते हैं कि हम अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं, या हम अपने जो सोचते हैं एक मुकाम तक हमें पहुंचना है, अच्छा एक्टिंग करना है, लोग कहें कि ये अच्छे एक्टर हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना जो मेहनत है उस मेहनत पे बिल्कुल लगन से मेहनत करना, कहते हैं ना दिल से, अगर करते रहेंगे और अपने क्राफ्ट पे अगर आप उतना अच्छा काम करेंगे एकदम शार्प, तो आपको कोई भी नेपोटिज्म हो, कोई इंसान हो, कोई भी आपको दबा नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं अपने क्राफ्ट के जरिए एक ना एक रास्ता आप ढूंढ ही लेंगे और सब लोगों के सामने से आप निकल जाएंगे और कहीं आप जरूर पहुंचेंगे। तो इसलिए डू प्रैक्टिस, दिल से प्रैक्टिस करें, मन से प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करें और पेशेंस अपने अंदर बना के रखें, ताकि आप धीरे धीरे ग्रो करें और एक दिन ऐसा ग्रो करें कि पूरी दुनिया ऐसे देखता रहे।